So we are going to discuss formula unit and formula unit mass, how to calculate formula unit mass. तो आपको बता देता हूं that when ions combine, the compounds formed by ions are called ionic compounds. Are called what? Ionic compounds. So if I ask you what do you mean by the term ionic compounds, simple answer is compounds consisting of ions. These are the compounds consisting of ions. Okay, तो बहुत sodium ion, many sodium ions and many chloride ions. Many sodium ions and many chloride ions together form sodium chloride. Together form sodium chloride. ये n times represent n number of ions and n number of units are formed. Okay, this n represents that. इसका मतलब सोडियम क्लोराइड जब फॉर्म होता है तो सोडियम आयन combines with chloride ion. That chloride ion combines with sodium ion combines with chloride, and chloride with sodium ऐसे continuous chain बनते जाएगा. It's chloride and chloride with sodium. So many sodium ions combine with many chloride ion. ये 3-dimensional structure होता है और ये structure को स्पेशली बोला जाता है octahedral. क्यूब जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा ये, and 8 corners will be there, thereby it is called octahedral structure. लेकिन हम लोग को अभी समझना फॉर्मूला यूनिट क्या होता है. Formula unit, and this term is specially used for ionic compounds consisting of ions. So the simplest unit of ionic compound, सोडियम क्लोराइड हम लोग को पता है कि many sodium ion and many chloride ions together form what? सोडियम क्लोराइड. लेकिन ये इसका सिंपलेस्ट यूनिट है. हो सकता है एक सोडियम आयन सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर में thousands of or 1000 सोडियम आयन and 1000 क्लोराइड आयन होगा. तो उसका सिंपलेस्ट यूनिट क्या होगा? NaCl, जिसमें एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन होगा, एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट? फॉर्मूला यूनिट. जैसे हम लोग बोलते हैं ना, एटॉम्स कंबाइंड टुगेदर, atom and atom. If I ask you, atom with atom will form what? What will be your answer? Atom with atom. Okay, Shreya Day, Kirti Ghorawat, Hetal, and many other students are giving answer. Atoms together form molecules. तो अगर मैं आपको पूछूं that cation मतलब पॉजिटिव आयन, anion means negative ion, if they together form something, that something will be called what? पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन का कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे हम लोग? सिंपलेस्ट कॉम्बिनेशन. नो, simplest combination. I am not saying about ionic compound. Simplest unit, अब थोड़ा easy होगा आपको समझने में. Simplest unit which is formed by positive ion and negative ion is called formula unit. Is called what? Formula unit. The simplest unit is called formula unit. Okay. So sodium chloride represents simplest unit. Potassium fluoride represents simplest unit. Silver sulfide represents simplest unit. सोडियम क्लोराइड में एक सोडियम आयन यहां दिखाई दे रहा है और एक क्लोराइड आयन. सिंपलेस्ट पोटाशियम आयन, फ्लोराइड आयन, 2 सिल्वर आयन and 1 sulfide ion. Okay, and formula unit में total charge will always be 0. न्यूट्रल होता है. total charge will always be 0. यहाँ 2 positive
and 2 negative. Total charge will be 0. Okay. So last class I discussed atomic mass represents what. हम लोग डिस्कस किया था atomic mass क्या represent करता है. अगर हम आपको बोलेगा कि atomic mass of sodium is 23U. What do you mean by that? तो आपका आंसर होगा this means 1 atom of sodium is 23 times heavier than 1/12 of the mass of 1 atom of C12 isotope. फिर आपको मैं अगर पूछूंगा व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कोई बताएगा कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना है? एनी वन ऑफ यू? अद्विका, योर आंसर इज रॉन्ग. रीचा कश्यप का करेक्ट है, सबसे फास्ट. चिराग, योर आंसर इज ऑल्सो करेक्ट. हिमांशु घुरावत, इट इज 44U. तो इसका भी आप मीनिंग बता सकते हो. 1 molecule of carbon dioxide is 44 times heavier than 1/12 of the mass of 1 atom of carbon 12 isotope. तो अब मैं आपको समझाऊंगा फॉर्मूला यूनिट मास का सिग्निफिकेंस. फॉर्मूला मास या फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ सोडियम क्लोराइड. ऑफ सोडियम क्लोराइड कैसे कैलकुलेट करना है? लुक एट हियर. सोडियम क्लोराइड हम लोग को पता है इट इज कंसिस्टिंग ऑफ Na+ and Cl-. फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ सोडियम क्लोराइड. ओके, सो हम लिखेगा यहाँ पे सोडियम आयन कितना 1. सो 1 into atomic mass. 1 into atomic mass of sodium plus 1 into atomic mass of chlorine. वही मेथड है, सेम मेथड. लेकिन यहां पे आपका एक क्वेश्चन हो सकता है दैट व्हाई आई एम टेकिंग एटॉमिक मास ऑफ सोडियम हियर, बिकॉज इन फॉर्मूला यूनिट मास आयन इज देयर. तो आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं. Sodium ion is formed by the loss of 1 electron from sodium atom. सोडियम एटॉम जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो सोडियम आयन बनेगा. क्लोरीन एटॉम जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्लोराइड आयन बनेगा. तो क्या बनेगा? क्लोराइड आयन. तो सोडियम एटॉम एक इलेक्ट्रॉन लूज करने से सोडियम आयन, क्लोरीन एटॉम एक इलेक्ट्रॉन गेन करने से क्लोराइड आयन. Loss of 1 electron will not affect its mass because mass of electron is negligible. एक एटॉम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने से उसका मास में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, because mass of atom is because of protons and neutrons, not because of electrons. Mass of chlorine atom is because of protons and neutrons, not because of electron. Mass of electron is negligible. इसलिए सोडियम का और सोडियम आयन का एटॉमिक मास हम लोग सेम लेते हैं, बिकॉज आयन बनता है बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल, तो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा. सो आपको फॉर्मूला यूनिट मास कैलकुलेट करने के लिए भी एटॉमिक मास ही यूज करना है. सो हियर सोडियम का एटॉमिक मास है 23, सो 1 into 23 will be 23U. क्लोरीन का एटॉमिक मास है, एनीवन हु नोज दैट? एनीवन हु नोज क्लोरीन का एटॉमिक मास? अद्विका gave the answer 35.5U. 35.5U. तो आपको अगर पूछा जाए व्हाट इज द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ सोडियम क्लोराइड, सो इट विल बी 58.5U. ओके, अब फॉर्मूला यूनिट मास तो वही रिप्रेजेंट, U always represents what? Atomic mass unit, and that is equals to 1/12 of the mass of 1 atom of carbon 12 isotope. तो मैं आपको बोलूंगा that one formula unit of sodium chloride is 58.5 times heavier
then 1/12 of the mass of one atom of C12 isotope. ओके, सो एटॉमिक मास से ही हम लोग कंपेयर किया मॉलिक्यूलर मास, और एटॉमिक मास से ही हम लोग कंपेयर कर रहा है फॉर्मूला यूनिट मास, क्योंकि फॉर्मूला यूनिट बनता है आयन से, आयन्स बनता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल, ओके। और फॉर्मूला यूनिट मतलब 1 यूनिट के बारे में बोला गया, 1 यूनिट। So Advika is asking here, why 1 unit? So formula unit represents 1 unit, thereby we are considering the mass of 1 unit. Thereby we are using the term formula unit mass. Formula unit mass. Chirag needs to see previous screen. एक बार देख लो आप previous screen if you want to take the screenshot. This one. Till now we discussed about formula unit mass. We discussed about formula unit mass. Okay. And the method of calculation of formula unit mass is same as that of method of calculation of molecular mass. तो आपको एक simple calculation करने के लिए मैं दे रहा हूं. Just write down the question. Calculate the formula unit mass of potassium carbonate. पोटासियम कार्बोनेट। आप ये कभी भी मत समझना कि आपको एटॉमिक मास गिवन होगा एग्जाम में, आप ये मत समझना कभी भी फॉर्मूला भी गिवन होगा। आपको फॉर्मूला राइटिंग का टेक्निक मैं समझा चुका हूं आयोनिक कंपाउंड्स के लिए, और एटॉमिक मास हो सके तो आप लर्न कर लेना, और गुड लक होने से शायद आपको इंफॉर्मेशन क्वेश्चन पेपर में मिल भी जाए, बट उस भरोसे नहीं रहना आप लोगों। पोटाशियम it is 39U and carbon 12U, ऑक्सीजन 16U, और पोटाशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है K2CO3। Now all of you should try. You should try to find out formula unit mass of potassium carbonate. Okay, some are giving answers, but let others also try. Himanshu Ghorawat ने सबसे fast answer दिया है, then Advika, yes Parik, Nimis का answer wrong है, Chirag Sharma also gave the answer, Kirti Ghorawat. Now look at here, formula unit mass, formula unit mass of potassium carbonate K2CO3। तो पोटाशियम यहाँ पे कितना है 2, so 2 into atomic mass of potassium मतलब 39U, plus carbon is 1 into 12U, plus oxygen atomic mass 16 and 3 oxygen 3 into 16U. It is 3 into 16U. Okay. So आप टोटल करके देखो कितना आता आपका आंसर, and you should get 138U. 138U. So in this way, formula unit mass can be calculated, and formula unit mass of potassium carbonate I have shown how to calculate. I hope you understood how to calculate formula unit mass. Have you understood, all of you? Just raise your hand for confirmation. Exactly, molecular mass calculation जैसा ही है। और आज का क्लास का नेक्स्ट टॉपिक है द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मोल कॉन्सेप्ट। ओके, उससे पहले मटेरियल से मैं वर्ड टू वर्ड आपको पहले फॉर्मूला यूनिट मास के बारे में समझा देता हूं, एंड देन आई विल स्टार्ट मोल कॉन्सेप्ट।
जस्ट लुक एट दिस पार्ट, बहुत छोटा पोर्शन है, 0.42. Formula unit: the simplest combination of ions that produces an electrically neutral unit is called formula unit. जैसे Na plus Cl minus, the simplest unit, total charge is 0, neutral है. And formula unit of ionic compound. Formula unit of ionic compound can be thought as the simplest or smallest unit of that compound. It is the equivalent of a molecule. ये एक molecule जैसा ही है of a compound. The formula unit of sodium chloride is represented as NaCl. And you know that NaCl consists of sodium ion and chloride ion. Then about formula unit mass. Formula unit mass भी क्या represent करेगा? Formula unit mass is just a number which indicates how many times one formula unit of that substance is heavier than 1/12 of the mass of one atom of carbon-12 isotope. So the formula mass or formula unit mass of ionic compound is the relative mass of its formula unit as compared to what? 1/12 of the mass of one atom of carbon-12 isotope. आप डेफिनेशन को थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हो अकॉर्डिंग जैसे पहले डिफाइन किया था कि फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ आयनिक कंपाउंड इज अ नंबर व्हिच इंडिकेट्स हाउ मेनी टाइम्स one formula unit of that compound is heavier than 1/12 of the mass of one atom of carbon-12 isotope. In other words, formula mass is the sum of the atomic masses of atoms or ions represented by its formula. वो तो हम लोग वैसे ही कैलकुलेट करते हैं. The atomic mass of an atom and its ion is just the same. ये बात मैंने आपको समझाया था कि सोडियम एटॉम if it loses electron it forms sodium ion. तो सोडियम एटॉम का जो मास है और सोडियम आयन का मास हम लोग सेम क्यों लेते हैं? क्योंकि आयन बनता है लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और इलेक्ट्रॉन लॉस होना और गेन होना कोई सिग्निफिकेंस नहीं है बिकॉज इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल. For example, the formula mass of sodium chloride will be sum of the atomic masses of sodium and chlorine. Now, atomic mass of sodium is 23U, atomic mass of chlorine is 35.5U. The formula unit mass or formula mass of sodium chloride will be 58.5U. और पोटेशियम कार्बोनेट हम लोगों ने डिस्कस किया था, that is 138U. और अब मैं जो समझाने जा रहा हूं that is very important concept. अब तक हम लोगों ने सिर्फ मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास कैलकुलेशन करना सीखा था और अब इसका एप्लीकेशन आने वाला है. सो आप लोगों को अपना फुल फोकस रखना है क्लास का नेक्स्ट पार्ट में. आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट मोल और मोल कॉन्सेप्ट. नो व्हाट इज मोल और मोल कॉन्सेप्ट? आप लोग जानते हो कलेक्शन ऑफ 12 इज कॉल्ड व्हाट? 12 का कलेक्शन को क्या बोला जाता है? एनी वन ऑफ यू? डजन. ओके, कलेक्शन ऑफ 12. ये जो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है पार्टिकल्स का, उसमें कलेक्शन ऑफ 6.022 into 10 to the power 23 is called 1 mole. Is called what? 1 mole. Collection of 6.022 into 10 to the power 23. Collection of 6.022 into 10 to the power 23 atoms भी हो सकता है, molecules भी हो सकता है, ions भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकता है, प्रोटॉन्स भी हो सकता है, कोई भी पार्टिकल्स. सो अगर मैं आपको बोलूं कि 1 मोल ऑफ सोडियम एटॉम कंसिस्टिंग ऑफ हाउ मेनी एटॉम्स, तो आपका आंसर होगा 6.022 into 10 to the power 23 एटॉम्स. हम आपको अगर बोलेगा 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितना मॉलिक्यूल्स है, तो आपको आंसर देना होगा 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स. मैं अगर पूछूं 1 मोल ऑफ सोडियम आयन में कितना आयन है, 1 मोल ऑफ सोडियम आयन में कितना आयन? 6.022 into 10 to the power 23 आयन्स. 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कितना इलेक्ट्रॉन्स? 6.022 into 10 to the power 23. ओके,
So mole represents collection of this, but by definition mole क्या होता है उसको समझने का कोशिश करेंगे हम लोग। देखना, अब दिमाग ज्यादा यूज करना आप लोगों को। 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप हम लोगों ने लिया, और 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप में नंबर ऑफ एटॉम्स कितना है वो मैं बता देता हूं आप लोगों को। ये फिक्स्ड है, ये नंबर है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटॉम्स। ठीक है, 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप में कितना नंबर ऑफ एटॉम्स होता है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटॉम्स। और इस फिक्स नंबर को एवोगैड्रोस नंबर भी बोला जाता है। ओके, क्या बोला जाता है? एवोगैड्रोस नंबर। तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप में जितना एटॉम्स होता है, 23 ग्राम ऑफ सोडियम में भी उतना ही एटॉम्स होता है। ओके, तो नंबर ऑफ एटॉम्स इन 23 ग्राम ऑफ सोडियम अगर पूछेगा तो कितना होगा? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटॉम्स। या फिर अगर मैं आपको पूछूं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितना मॉलिक्यूल्स होता है? दैट नंबर इज व्हाट? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अभी हम लोग नंबर पे फोकस कर रहे हैं। 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। अगर मैं आपको पूछूं दैट 58.5 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड में नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स कितना है? तो आंसर यही है। ओके, यही आंसर है। सो व्हाट इज 1 मोल? इफ आई आस्क यू व्हिच अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड 1 मोल? The amount of substance which contains the same number of particles as there are atoms in 12 gram of carbon 12 isotope. 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप में जितना एटॉम्स होता है, अगर किसी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है, वो एटॉम्स भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, आयॉन्स भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकता है, that amount of substance is called 1 mole. अगर मेरे पास जो पेन है और इस पेन के अंदर 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स होता है और इस पेन का मास सपोज 20 ग्राम होता है, so the 20 gram of this pen will be equals to what? 1 mole. Mole represents amount of substance. amount of substance का यूनिट को ही मोल बोला जाता है, लेकिन वो कितना अमाउंट होगा? उस अमाउंट में फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स होना पड़ेगा। कितना पार्टिकल्स? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब आपको एक बार और समझा देता हूं। मुझे पता है ये टॉपिक में थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, कहाँ सोचना है, किस क्या सोचना है, कंफ्यूजन में भी देयर। सो थोड़ा सिंपल रखते हैं हम लोग। इट इज एस्टैब्लिश्ड दैट 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप contains 6.022 into 10 to the power 23 atoms. ठीक है, 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप में इतना एटॉम्स होता फिक्स है, और उस नंबर को हम लोग बोलेंगे एवोगैड्रोस नंबर। अगर किसी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम, 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम में नंबर ऑफ एटॉम्स होता है 6.022 10 to the power 23। तो 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम will be equals to 1 mole, will be equals to 1 mole. Then 23 ग्राम ऑफ सोडियम में भी उतना ही एटॉम्स होता है, तो 23 ग्राम ऑफ सोडियम will be equals to 1 mole. 44 gram of carbon dioxide will also be equals to 1 mole.
and 58.5 gram of sodium chloride will also be equals to 1 mole. तो मोल किसको रिप्रेजेंट करता है? Mole represents that amount of substance which contains the same number of particles as there are number of atoms in 12 gram of carbon 12 isotope. 12 gram of carbon 12 isotope में जितना atoms होता है, if the same number of particles are present in some other amount of substance, then that other amount of substance is said to be what? 1 mole. Said to be 1 mole. अगर आपके पास 100 ग्राम ऑफ समथिंग है x और उसमें भी 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स होगा, तो ये 100 ग्राम को हम लोग क्या बोलेंगे? 1 मोल. ठीक है. तो अगर मैं आपको पूछूं 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना है, आपका आंसर क्या होगा? 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मास 44 ग्राम. Now if I ask you 1 mole of calcium का मास कितना है? 1 mole of calcium 40 ग्राम. Good. If I ask you 1 mole of sodium का मास क्या है? 1 mole of sodium 23 ग्राम. अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम में कितना मोल होता है, बता दो. 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम में कितना मोल होता है? 1 मोल. Okay, then if I ask you 44 gram of carbon dioxide, how many moles? 1 mole. If I ask you 88 gram of carbon dioxide, how many moles? Good, 2 moles. 88 gram carbon dioxide बोला मैंने, तो 2 moles. If I ask you 11.5 gram of sodium, how many moles? 11.5 gram of sodium. Good, half mole, 0.5 मोल. ओके, तो मोल का मतलब क्या समझ में आया आप लोगों को? मोल इज अनमोल. ओके, मोल समझना भी अनमोल है. इट इज नॉट दैट इजी. बहुत स्टूडेंट को समझ में ही नहीं आता एग्जैक्टली क्या बोल रहे हैं. व्हाट आई एम सेइंग, मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. ठीक है, मेरे पास ये टी है, चाय है. अगर इतना टी में नंबर ऑफ पार्टिकल्स 6.022 into 10⁻23 होगा, तो हमारे पास कितना टी है इन टर्म्स ऑफ मोल? 1 मोल. बस यही कॉन्सेप्ट है. If the number of particles in any amount of substance is equal to the number of particles in 12 gram of carbon 12 isotope, then that particular amount of substance is called 1 mole. Okay, that is called what? 1 mole. So अब मैं मटेरियल से समझा देता हूं आपको, ताकि आपको पूरा डेफिनेशन कॉन्सेप्ट फुल क्लियर हो जाए. Just focus here. I'm going to discuss from point number 44 और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का. ये एक ऐसा पोर्शन है, अगर वो क्लियर नहीं हुआ तो आप इस चैप्टर का जो मेन न्यूमेरिकल्स है वो नहीं कर पाओगे. पॉइंट 44, मोल. द मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स which may be atoms, ions, molecules, formula units, as there are atoms in exactly 12 gram of carbon 12 isotope. स्टैंडर्ड तो लेना पड़ता है ना कंपेयर करने के लिए. तो स्टैंडर्ड है 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप. उसमें जितना पार्टिकल्स, उसमें कितना पार्टिकल्स, कितना एटॉम? 6.022 into 10⁻23. If any other amount of substance contains the same number of particles, then that amount is said to be what? 1 mole. The word mole was introduced in 1896 by Wilhelm Ostwald, who derived the term from the Latin word moles, meaning heap or pile, like a heap of sand. A substance may be considered as a heap of atoms or molecules. कोई भी substance में collection है किसका? Either atoms, molecules, or maybe of ions. The unit mole was accepted in 1967 to provide simple way of reporting a large number, that is a massive heap of atoms
और मॉलिक्यूल्स इन अ सैंपल। एक सैंपल में बहुत ज्यादा नंबर ऑफ एटॉम्स, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक छोटा यूनिट का जरूरत था, एंड दैट यूनिट इज मोल। और आपको मिलेगा, अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, आपका आंसर होना चाहिए मोल। ओके, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, बहुत लोग केजी भी बोल सकते हैं, बट SI unit of amount of substance is mole and SI unit of mass is kg or kilogram. Okay, now the number of particles, if you look at here, the number of particles, atoms, molecules or ions present in 1 mole of any substance is fixed. अब तो आपको ये knowledge हो गया, 1 mole of any substance, fixed number of particles, that fixed number is fixed. It is what? 6.022 into 10 to the power 23. And this is an experimentally obtained value, and this number is called Avogadro number or Avogadro's number, denoted by symbol N0. And it is named in the honor of the Italian scientist Amedeo Avogadro. Okay, तो आप लोगों को तो ये पता ही है कि किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल में फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है। वो पार्टिकल्स एटॉम्स भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, आयॉन्स भी हो सकता है, एंड दैट फिक्स नंबर इज कॉल्ड एवोगैड्रोस कांस्टेंट और एवोगैड्रोस नंबर। सो 1 मोल ऑफ एनीथिंग इज इक्वल्स टू 6.022 into 10 to the power 23 in नंबर। ये एग्जाम में ये भी आता है, डिफाइन एवोगैड्रोस नंबर, which is denoted by symbol N0, NaL भी यूज किया जाता है। The Avogadro's constant is defined as the number of atoms in exactly 12 gram of carbon-12 isotope। ये तो मैं कितना बार आपको बता चुका हूं कि 12 ग्राम ऑफ carbon-12 isotope में नंबर ऑफ एटॉम फिक्स होता है, दैट नंबर इज Avogadro's नंबर, और वो नंबर है 6.022 into 10 to the power 23 पर मोल। आपको एग्जाम में जब एवोगैड्रोस कांस्टेंट लिखना होगा ना, तो उसको ऐसे लिखना 6.022 into 10 to the power 23 पर मोल, मतलब 1 मोल में 6.022 into 10 to the power 23। और एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यहाँ भी है, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, व्हाट इज मोलर मास? द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मास। तो मैं अगर आपको पूछूं व्हाट इज द मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, what will be your answer? What is the molar mass of carbon dioxide? The mass of 1 mole of a substance is called molar mass. Good. Karan सबसे fast, then Advika 44 ग्राम। 44 ग्राम। चलो आपका दिमाग थोड़ा टेस्टिंग करते हैं। What is the molar mass of water? What is the molar mass of water? Anyone? Molar mass of water. Good. So many have given the answer. And it is 18 ग्राम। 18 ग्राम, यानी आप वो समझ लो कि मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में लिखने से ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास को ही क्या बोलेंगे? मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास के केस में। सो द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड व्हाट? मोलर मास। तो अब तक का डिस्कशन से आपको ये पता चल गया होगा कि 1 मोल कितना होता है। 1 mole is that amount of substance which contains the same number of particles, which may be atoms, molecules or ions, as there are atoms in 12 gram of carbon-12 isotope। 12 gram of carbon-12 isotope में जितना particles होगा, if any other amount of substance contains the same number of particles, which may be electrons, protons, which may be neutrons, which may be atoms, molecules, ions, formula unit, कोई भी एक तरह का पार्टिकल होना चाहिए। अगर नंबर सेम हुआ तो दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड 1 मोल। चलो एक क्वेश्चन और, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज का मास क्या होगा? एनीवन? 1 mole of glucose, what will be the mass? Good. So many, मतलब आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, and it is 180 ग्राम। 180 ग्राम। और अब मैं एक अलग थोड़ा टॉपिक है, अलग फॉर्मूला है, वो बताने जा रहा हूं, और उसका एक एग्जांपल भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फॉर्मूला टू कैलकुलेट परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड। आपको मैं अगर
एक कंपाउंड के बारे में बता देता हूं, फॉर एग्जाम्पल एमोनिया, ठीक है। और मैं आपको पूछूं कि एमोनिया का फॉर्मूला ये है और एमोनिया में नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है और एमोनिया में हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है। तो कोई स्टूडेंट यहां देखेगा और बता देगा आउट ऑफ द 4 नाइट्रोजन 1, आउट ऑफ द 4 नाइट्रोजन हाइड्रोजन इज 3, तो वो ऐसे बोल सकता है दिस इज 25% एंड दिस इज 75%, ये रॉन्ग होगा। यहां हम लोग परसेंटेज कॉम्पोजिशन बताने का, जब कंपाउंड का बात करते हैं तो उस कंपाउंड में एक एलिमेंट का परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ मास बताना है, सो ये पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज करना है। Percentage of an element in a compound is total mass of the element in the compound divided by gram molecular mass or total mass of the compound into 100%. आपको अगर मैं पूछूं व्हाट इज द परसेंटेज, जैसे ये क्वेश्चन है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, आपको अगर पूछा जाए कार्बन का परसेंटेज और ऑक्सीजन का परसेंटेज ही होगा, इसमें दोनों का एलिमेंट का परसेंटेज बताना है, कार्बन का और ऑक्सीजन का। फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2 and you will have to find out the percentage of what, carbon and oxygen। तो कैसे कैलकुलेट करना है उसका मैं एक आइडिया देता हूं और ये एग्जांपल से आप बाकी सभी के लिए कैलकुलेशन कर पाओगे। तो हम लोग को करना क्या है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इट इज 44 ग्राम। ये कैलकुलेशन अब आपको आता ही होगा, 44 ग्राम। तो हमको पहले कैलकुलेट करना है परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग टोटल मास ऑफ एलिमेंट, कार्बन का टोटल मास यहाँ कितना होगा, CO2 में टोटल मास 12 ग्राम और ऑक्सीजन का टोटल मास कितना होगा 12 अगर कार्बन है और मॉलिक्यूलर मास 46 है, सो यहाँ पे 32 ग्राम। तो पहले परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड इज 12 ग्राम बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम इनटू 100%। Then percentage of oxygen in carbon dioxide, total mass of oxygen कितना होगा, O2 है इसलिए 32 ग्राम by 44 ग्राम into 100%। आप पहले कार्बन का परसेंटेज मुझे बता दो कार्बन डाइऑक्साइड में, what is the percentage of carbon? Okay, percentage of carbon is 27.727 आ रहा है, ठीक है। बाकी सब भी कैलकुलेट कर लो। और चिराग ने क्वेश्चन पूछा कि 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 88 ग्राम कैसे हुआ, उसको नहीं समझ में आया। तो सिंपल यूनिटरी मेथड आपको यूज करना है। 1 मोल ऑफ, मैं अगर आपको पूछूं चिराग 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना है, व्हाट विल बी योर आंसर? 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड चिराग 44 ग्राम। तो सिंपल है 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बताओ आप चिराग। 3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बस आपको समझ में आ गया, मुझको समझाने का जरूरत ही नहीं पड़ा। सो अगर आपको यहाँ परसेंटेज कैलकुलेशन में कार्बन के लिए 27.27 आ रहा है, अगर 27.27%, तो आप ऑक्सीजन का एक और तरीका से निकाल सकते हो, 100 माइनस 27.27%। बचा हुआ तो आप 2 ही एलिमेंट होने से एक का परसेंटेज पता चल जाने से सेकंड का आप 100 से माइनस करके भी निकाल सकते हैं। दिस इज 72.72 होगा या 73, ज्यादा प्रॉपर क्या होना चाहिए 100 से माइनस करने से? 100 से माइनस करने से जो आएगा वही तो बचा हुआ होगा। ओके, so it is 72.73%। In this way we can calculate percentage composition। हम लोग इस तरह परसेंटेज कॉम्पोजिशन कैलकुलेट कर पाएंगे।
आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट। सबको समझ में आ गया परसेंटेज कॉम्पोजिशन? हेतल को कंफ्यूजन है? ओके। परसेंटेज जैसे आप मार्कशीट में किसी एक सब्जेक्ट का परसेंटेज निकालते हो, ऑलमोस्ट वैसा ही है यहाँ पे। आपको उस कंपाउंड में कार्बन का टोटल मास कितना था वो जानना था 12, लेकिन ऑक्सीजन का 32 क्यों हो गया? ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16, 32 होने का रीजन यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटॉम। ठीक है, तो आप परसेंटेज कार्बन का निकालोगे तो कार्बन का टोटल मास है 12 डिवाइडेड बाय उस कंपाउंड का ग्राम मोलिकुलर मास। कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम है, सो 12 बाई 44 इंटू 100%। सिमिलरली ऑक्सीजन का कैलकुलेट करने के लिए आपको ऑक्सीजन का टोटल मास कितना है? 32 डिवाइडेड बाय 44 इंटू 100%। हेतल, हैव यू अंडरस्टूड? ओके, अब आप लोगों को कैलकुलेट करने के लिए मैं एक दे रहा हूं, दिमाग यूज करना उसके लिए। जो पहले आंसर देगा वो आज का क्लास का चैंपियन होगा। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला है CONH2 फुल ट्वाइस। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14 एंड हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1। आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? आपको कैलकुलेट करना चाहिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन, सॉरी ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ आपको यूरिया सबसे पहले कैलकुलेट करना चाहिए। उसका कैलकुलेशन करो आप। तो उसमें कार्बन कितना देख लो, ऑक्सीजन कितना है, नाइट्रोजन ये 2 से इंटू होगा और हाइड्रोजन भी ये 2 से इंटू होगा। सो फर्स्ट यू कैलकुलेट ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया। If the screen is not visible to anyone, just exit and enter again. There may be some network issue. Yes, पारिक, थोड़ा और एक्यूरेट अगर कैलकुलेट कर सकते हो। पहले मॉलिक्यूलर मास बता दो, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया क्या होगा? फर्स्ट यू कैलकुलेट दैट। डायरेक्ट आंसर तो बहुत लोग गूगल भी यूज कर सकता है, इतना फास्ट आंसर डाउट हो जाता है हमको। चैंपियन हो सकते हो आप, मैथमेटिकल चैंपियन। आपका कैलकुलेशन मॉलिक्यूलर मास पूछा, आप लोग फाइनल आंसर दे रहे हो। मैंने पूछ रहा हूँ रामायण एंड यू आर आंसरिंग महाभारत। ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया क्या है? ओके, नाउ अद्विका हैज गिवन द आंसर। ये पहले ये कैलकुलेट करो, 60 ग्राम आ रहा होगा। अब आपको परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन पूछा है, आपको परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। सो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया निकालने के लिए नाइट्रोजन का टोटल मास कितना है? यहाँ पे नाइट्रोजन N2 हो गया, 14 है तो 28 ग्राम होगा और यूरिया का 60 ग्राम है इंटू 100%। सो मैंने बार बार बोला कि आप एक्यूरेट आंसर निकालो और रूही खेमका ने सबसे पहले करेक्ट आंसर दिया है। गुड, रिचा कश्यप ऑल्सो। आपको देखो कैलकुलेशन करने से कितना आता है। हिमांशु घोरावत, योर आंसर इज नॉट दैट करेक्ट, सॉरी हिमांशु यू आर करेक्ट। हेतल सुराना, आपका आंसर रॉन्ग है एंड इट इज 46.66 या 67 लिखना चाहिए आपको। 46.67% नाइट्रोजन, 46.67%। गुड, सो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट परसेंटेज कॉम्पोजिशन। इसमें तो मैंने सिर्फ नाइट्रोजन का पूछा, जब आपको पूरा कॉम्पोजिशन पूछा जाएगा तो आपको नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इन सब का कैलकुलेट करना होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब आज का क्लास में चैंपियन स्टूडेंट वही होगा जो मुझे
दो डेफिनेशन ठीक से बोल पाएगा। अभी का जो चैंपियन है उसमें ऋचा कश्यप ने सबसे पहले आंसर दिया था, और रूही खेमका, सॉरी सबसे पहले रूही खेमका देन ऋचा कश्यप। एंड दो डेफिनेशन बोलना है, वन डेफिनेशन फॉर मोल और वी कैन से वन मोल, एंड देन एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर, ये दो टर्म को डिफाइन करना है ओनली। मोल एंड एवोगैड्रोस नंबर, एकदम प्रॉपर डेफिनेशन कौन दे सकता है वही आज का चैंपियन होगा। सो आई एम गिविंग यू सम टाइम टू लर्न दैट टू डेफिनेशन, और आपका स्क्रीन पे भी वो डेफिनेशन अभी दिखाई देगा। दीज टू डेफिनेशंस, definition of the two important terms. First one mole and second one Avogadro's number. एक टीचर को कुछ कुछ स्टूडेंट का नाम ही याद रहता है और सबका नाम याद नहीं रहता, उसका एक रीजन होता है, सबका नहीं रहता है। और जो लोग अपने आप को प्रेजेंट कर पाते हैं, आंसर दे पाते हैं, मेहनत करते हैं, उन लोग का नाम याद रहता है एक तो, और सेकंड जो लोग एकदम भी आंसर नहीं करते या रॉन्ग ही करते हैं उन लोग का। और कुछ होता है साइलेंट स्टूडेंट, वो लोग कुछ नहीं करते। तो वो दोनों कैटेगरी तो फिर भी हर टीचर को पसंद होता है कि कुछ लोग आंसर किया रॉन्ग हो गया और कुछ लोग आंसर किया करेक्ट हो गया। और कुछ लोग जो आंसर करता ही नहीं कभी भी, उन लोगों का काम नहीं एक टीचर के सामने, वो ऐसे ट्यूशन आते हैं और क्लास करते हैं, फिर टाइम पास अपना भी करते हैं और टीचर का भी टाइम पास करते हैं।